A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. So, class, today we all are going to continue our chapter number 10 of your political theory book. The name of your chapter is Development. In our last class, we discussed about assessing development, how we can assess development, and what are the positives of development. Okay, how do we how countries benefit with the models adopted by them for the development, and after that we started this topic alternative conceptions of development where we discussed about the uh, like uh, discussed about the with having some limitations. We do have positives of the models of development, and even some countries are there who enormously benefited by the strategies adopted by them for the model of development. Okay, so now under this we will discuss about right claims. Okay, so in basically in this section, as you all know, we will examine about the concepts of development. Okay, what are the new meanings of development? Okay, so under that this section we have seen we will see about the alternatives of development. So right claims, this is the next topic under alternative conceptions of developments. We have noted how the benefits of development have been largely honored by the powerful, and the costs of the development model have been borne by the poorest and vulnerable sections of the population, whether due to ecological degradation or due to displacement and loss of livelihood. So we have seen there are environmental costs, there are social costs, and the conditions of poor and vulnerable becomes more worse after adopting the models of development, right? So one of the issues which have been raised in regarding the protection that affected people can claim from the state and the society as a whole. So class, one of the issues जो काफी टाइम काफी बार रेज होता है, किस लिए रेज हो रहा है कि how vulnerable poor or citizens will be protected, how a country will be protected, how we can contribute ourselves, how we can protect our society. So as you all know, in a democracy, do people have a right to be consulted in decisions which directly affect their lives? We talk about democracy. क्या डेमोक्रेसी में लोगों को ये राइट होना चाहिए कंसल्ट करने का, डिसीजंस लेने का? ठीक है, क्या ये उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनकी लाइफ में उनको क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या उनको उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या हमें उनसे ये चीजें कंसल्ट करनी चाहिए? Do they have a right to livelihood which they can claim when an activity sanctioned by the government threatens their source of livelihood? क्या राइट टू लाइवलीहुड, क्या उनके पास राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, जिससे कि वो अगर गवर्नमेंट उनको थ्रेट करती है या फिर उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उसको लेके या किसी भी चीज को लेके अगर गवर्नमेंट थ्रेट करते तो क्या उनके पास ये राइट है कि वो इस चीज को क्लेम कर सके? Another issue is regarding rights to natural resources. We all have क्या हमारे पास natural resources का राइट होना चाहिए? क्या हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का राइट क्लेम कर सकते हैं? Can communities claim traditional rights to use the use of natural resources? क्या कम्युनिटीज जो है ट्रेडिशनल राइट्स को यूज कर सकती है कि जिससे कि वो ट्रेडिशनल जो भी राइट्स है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स की जो पूरी लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो पूरी लाइफ फॉरेस्ट, स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट ट्राइबल्स हैं, वो उनकी पूरी लाइफ किस पे डिपेंड करती है? उनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो क्या उनके पास वो राइट है कि वो क्लेम कर सके कि मैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को, इस फॉरेस्ट को यूज करूंगा?
This particularly applies to obviously tribals and aboriginal communities who have a specific way of community life in relation to the environment. So these are like some of the questions which arise like कि हम कौन कौन से राइट्स क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें. The crucial issue here is to whom do natural resource belong. Obviously you all will say कि मैम ये natural resources हैं, वो लाइक वो क्लेम कौन कर सकता है, ठीक है, और ये किससे बिलोंग करता है, ये किसी से बिलोंग करता भी है कि नहीं करता है. Is it the local community, the state concerned, or they a common resource, or are they a common resource of all humanity? क्या ये एक लोकल कम्युनिटी कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल आर लिविंग इन बीकानेर, तो बीकानेर के जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, तो जो लोकल कम्युनिटीज जो हम रह रहे हैं, क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज उनके हैं, या फिर स्टेट मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो उनका मैटर है, या फिर ये दोनों जो ये कंसर्न ह्यूमैनिटी का है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए रिसोर्सेज का यूज करें. So if we understand resources as common to humanity, then humanity would include future generations as well. Obviously अगर हम humanity को अगर मानते हैं और हमें लगता है कि ये resources common है, humanity के लिए यूज करने चाहिए, देन ह्यूमैनिटी में आपकी फ्यूचर जनरेशन भी आती है. जो भी फ्यूचर जनरेशन होंगी हम उनको भी जो भी डेवलपमेंट करेंगे हम सस्टेनेबली करेंगे, जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन का भी क्या करें, ध्यान रखें. Negotiating the competing demands of different sections of a population as well as achieving a balance between the claims of the present and future is the task of democracy. So this is like one of the most important task of democracies, of democratic governments, कि वो future प्लस प्रेजेंट जनरेशन के जो क्लेम्स हैं उनको क्या करें, उसको एक बैलेंस बना के रखें. हम ऐसे रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज करना है जिससे कि ना जिससे कि हम प्रेजेंट को भी देख सकें और फ्यूचर को भी देख सकें, ठीक है. सो दीज आर राइट क्लेम्स अंडर असेसिंग डेवलपमेंट. इसमें स्पेशली हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि हम कौन कौन से राइट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं, क्या हमारे पास राइट्स हैं डेवलपमेंट. अगर हम राइट्स क्लेम, फॉर एग्जांपल राइट टू लाइवलीहुड है, ठीक है, हमें कोई थ्रेट नहीं है, हमें ये थ्रेट नहीं है कि ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हमें हमें डरा रही है, धमका रही है या कुछ भी कर रही है, तो हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड है. अगर राइट टू लाइवलीहुड होगा और हम फ्री माइंड रहेंगे, हम सिक्योर रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे, ठीक है. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. Democratic participation, what do you mean by the term democratic participation? Yes. Okay, so democratic participation is the participation by the people. So in democracies, in democratic type of government, what happened, people are main here, people are the government, and they make government for the people, and this government is formed by the people and to the people and for the people. Okay, so democratic participation is like very much important. How many times have you been told that you must do something, say obey your parents or teachers for your own good, and have you felt like saying, if it is good for me, please let me decide that myself. So the distinction between democracy and dictatorship is that in a democracy, conflicts over resources or different visions of the good life are resolved through debate and a respect for the rights of all, and these cannot be imposed from above. So many times, well, like we think
आप लोग को भी लगता होगा, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स आपको कुछ ना कुछ सजेशंस या फिर आपको कुछ ना कुछ करने को बोलते रहते हैं, लाइक दे told you like you have to do things, you have to obey your parents, you have to obey your teachers, you have to go to school. So like sometimes you think it's my life, let me decide what I want in my life. I really want to go to the school or not, I really want to obey my parents or teachers. ठीक है, तो ये होता है ना, जैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बट जो ये डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप भी ऐसा ही है। डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिसोर्सेज को लेके, ऑब्वियसली वी ऑल आर यूनिक क्रिएचर्स, हम सबके व्यू पॉइंट्स भी काफी डिफरेंट है, विजन्स हमारे डिफरेंट होते हैं लाइफ को लेके, गुड लाइफ को लेके। हो सकता है किसी के लिए एक अच्छा मकान, ठीक है, लग्जूरियस लाइफ जो होती है, ठीक है, एक बंगलो हो, स्विमिंग पूल हो, एसीज हो हर जगह, ठीक है, और क्या कार हो, ये सारी चीजें। किसी के लिए लाइफ जो होती है वो अच्छी लाइफ होती है, गुड लाइफ होती है। किसी के लिए पीसफुल लाइफ बहुत अच्छी होती है कि एक अच्छी सी नौकरी हो, ठीक है, मैं अपने डेली नीड्स को मैं फुलफिल कर पाऊँ, पीसफुल लाइफ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो मेरी लाइफ में। तो दीज आर लाइक जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट द एग्जांपल्स। तो हम सबके जो विजन्स हैं वो क्या है, काफी डिफरेंट है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है, किसी रिसोर्सेज को लेके, तो वी कैन रिजॉल्व दोज इश्यूज through debates or and deliberations, and we should honor the rights of the individuals. हमें सबके rights को क्या करना चाहिए, honor करना चाहिए, respect करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन पे बस impose कर दिया जाए, ठीक है, कि नहीं तुम्हें, मैंने बोल दिया नहीं, आपको क्या है, आपको ओनली रोटी खानी है, नहीं, आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि नहीं, मैं रोटी नहीं, आपकी चॉइस है, आपको रोटी खानी है रोटी खाओ, या फिर चावल खाना है चावल खाओ, ठीक है। तो आप पे कोई इम्पोज नहीं कर सकते हैं। Thus, if everyone in a society has a common stack in achieving a better life, then everyone needs to be involved in formulating the plans of development and in devising ways of implementing them. अब एक क्वेश्चन आता है कि इतनी हाँ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं, इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और यहाँ पे क्या है, हम सबकी अलग अलग लाइफ है, हम सबके लिए डेवलपमेंट्स जो है, हम सबके लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब अलग है। तो अगर सोसाइटी में सब एक ऐसे ही सोचेंगे कि हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए और उसके लिए खुद प्लान्स बनाएंगे डेवलपमेंट, आप एज अ होल सोचिए, एज अ सोसाइटी सोचिए, ठीक है, कि डेवलपमेंट के लिए आपके अकॉर्डिंग बिकानेर में बहुत दूसरी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, वट एवर योर थिंकिंग इज, कि आप अपना आप अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फाल्गुनी, व्हाट इज लाइक हाउ डू यू वांट योर सिटी, ठीक है, कैसी सिटी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार की सिटी आपको चाहिए, आप कैसे डिजाइन करोगे, प्लान करोगे कि क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स होने चाहिए। लक्ष्य आपको बोलूं तो फाल्गुनी को बोला, लक्ष्य को बोला, पलक को बोला, सबको बोला, सबने अपने अपने विजन्स यहाँ पे दिए। ऑब्वियसली वो सिमिलर विजन्स नहीं होंगे, कुछ चीजें हो सकती है सिमिलर हो, बट एकदम सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव डिफरेंट विजन्स इन आवर लाइफ, राइट। So there is a difference between following a plan made by others and sharing in the formulation of the plans. Obviously, एक अपना विजन शेयर करना और एक जो मैंने आपको बोल दिया है आपको वही फॉलो करना है, उसे फॉलो करना, दोनों बहुत अलग बात है। Firstly, even if others make plans with the best intentions, they are likely to be less aware than you about your specific needs. Obviously, what is your need? ठीक है, अब फाल्गुनी की बेसिक नीड क्या है, लक्ष्य की क्या है, पलक की, राघव की, रानू, तनिष्का, तुम सबकी क्या है बेसिक नीड्स जो है अलग है। वो मैं नहीं जानती हूँ कि आपकी बेसिक नीड क्या है। अब आपको पॉलिटिकल थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है या फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ज्यादा अच्छा लगता है, आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है,
हम एक स्कूल या एक टीचर क्या करेगी, कॉमन देखेगी कि एक कॉमनली बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी अराइज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देंगे उनके। एकदम जब तक तो 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं होगा, 1-to-1 जब आप बताते नहीं हैं, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, तब तक हमें नहीं ये फील होता कि इनकी नीड्स क्या है। ठीक है, मैं अपने इंटेंशंस के अकॉर्डिंग मैं चाहूंगी कि मेरे जो बच्चे हैं क्लास 11 के बच्चे, में इनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है क्लियर करूं और मैं अपने अकॉर्डिंग स्कूल अपने अकॉर्डिंग क्या है बेस्ट इंटेंशंस के साथ आपके लिए चीजें ऑर्गेनाइज करता है। दे आर लाइकली, बट व्हाट आर योर लाइक बेसिक नीड्स, कि आपको पर्टिकुलरली आप सबको क्या, आप लोगों की क्या नीड्स हैं, उन चीजों को हम कोई भी फील नहीं कर सकता है, आपको ये चीज खुद को ही पता होगी। So secondly, being an active part of the decision making process is empowering. Obviously, एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है बहुत एम्पावरिंग है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाइक अगर इन्वॉल्वमेंट अगर किसी डिसीजन मेकिंग में होता है, वो टाइम टेकिंग जरूर होता है, ठीक है, बट डिसीजंस जो है वो बेस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, सो बोथ democracy and development are concerned with realizing the common good. By what process can the common good be defined? अब common goods क्या है, किस process से हम define करें? In a democratic countries, the right of people to participate in decision making is emphasized. ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है, उतनी ही अच्छी आपकी क्या है, डेमोक्रेसी है। आप फ्री हो, फ्रीडम है आपको, ठीक है। One of the way which has been suggested to ensure participation is to allow local decision making bodies to take decisions about development projects in the local area. So in our previous chapter of your Indian Constitution at Work, the name of your chapter is local governments, where we have seen how local government can take more good decisions than the state governments. Obviously एक आपके एक स्टेट को एक स्कूल की तरह मानिए, एक क्लास टीचर को जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जितने अच्छी तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स पता होगी, उतनी अच्छी तरीके से एक प्रिंसिपल को नहीं होगी उन बच्चों के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए के पास क्या है, 20 क्लासेस हैं, 20 डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट लेवल्स पे क्लासेस हैं, ठीक है, कुछ सीनियर क्लासेस है, कुछ जूनियर क्लासेस है, कुछ सेकेंडरी सेक्शन है, ठीक है। तो एक जो प्रिंसिपल है वो ओवरऑल देखती है कि हमें कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करना है, बट वही मुझे देखना है, एक टीचर जो है वो क्या देखेगी, उसे उसकी पर्टिकुलर जो क्लास है उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, वहां पे कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कोई फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोई पर्सनल मतलब कि दो बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दो जो बच्चे हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं और इस वजह से पूरा माहौल खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपसे 1-to-1 कम्युनिकेट करूंगी, आपकी प्रॉब्लम को देखूंगी, सुनूंगी। वही अगर प्रिंसिपल के सामने इतनी सारी क्लासेस है, वो ये नहीं देख पाएगी आपकी क्लास का फैन खराब है कि सही है, आप वो नहीं देख पाएंगे, वो क्या करेंगे, वो ये नहीं देख पाएंगे कि दो बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर पता चलता भी है तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत टाइम के बाद वो चीज पता चलती है, राइट। सो लोकल लेवल पे in the local area, locals take good decisions as compared to the state governments or the higher government at the central level. So increasing the powers and resources of local bodies is thus being advocated. We have seen it decentralization. It takes a very long process. So many committees were there, ठीक है, so many committees take participate, बहुत सारे debates हुए, discussions हुई, but after like so much struggle, approximately for like you can say 40 years के struggle के बाद, constituent assembly के formation के बाद 40 years के बाद approximately क्या हो गया, आपका local governments बन गए थे। तो जब अगर आप locals की powers को क्या कर दोगे, local bodies की power को increase कर दोगे,
ठीक है, तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कैसे यूज करने हैं. On the one hand, it is argued that people have to be consulted on issues which most affect them, and it should be possible to reject projects which can adversely affect the community. Sometimes, like ये भी argue किया जाता है कि जो लोग हैं उनसे consult करना चाहिए कि वो क्या क्या problems face कर रहे हैं. तो if you have come up with a project, so we should discuss with the locals and discuss with the citizens, because they are the one who who will affect from positively or negatively, they will affect from that project. They even they have this right to reject the problems on, because ये जो project है वो स्पेशली किसको अफेक्ट दे करेगा, वो लोकल्स को, सिटीजन्स को अफेक्ट करेगा. डैम बिल्ट हो रहा है तो डैम बिल्ट जहां पे भी बिल्ट हो रहा है वहां पे आसपास के जो लोग हैं उसको उससे क्या है इफेक्ट पड़ेगा, ना कि जो सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट बैठी है उसको. So on the other hand, it is said that involvement in planning and formulating policies allows people to direct resources towards their needs. Sometimes some people say, या कुछ लोगों को क्या बोल रहा है कि बोलना है कि जो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हम लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी जरूरतों को ज्यादा पूरा कर रहे हैं, लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हैं. Where a road must be laid, what should be the route of the metro or local buses? Where a park or school should be located, whether a village needs a check dam or an internet cafe, should be decisions which must be taken by them. ठीक है, अब बोला जाता है obviously locals को, अब वहां पे स्कूल्स कहाँ बननी चाहिए लोकल्स को ज्यादा अच्छी तरीके से पता होता है, बिकॉज वो वहां रहते हैं. बच्चों का एसेस कैसे रहेगा, तो ये लोकल्स का डिसीजन होना चाहिए. यहाँ पे रोड, कहाँ पे रोड बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, ठीक है, लोकल से क्या है सजेशंस लेने चाहिए. ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वही पर्संस हैं वो क्या करेंगे, उस रोड का यूज करेंगे. So it was argued above that the prevailing model of development is top down and tends to view people as objects of development. So on the name of the people, like we adopted the models of development, and इससे क्या हो रहा है, हमने mostly ये देखा है top down means कि like rich becomes more rich and poor becomes more poor. ये situation arise हो रही है. It assumes that there is one best way to arrive at solution for our problems. In the process, the accumulated knowledge and experience of people may be ignored. A decentralized approach to development makes it possible to use various kinds of technology. So now just look at decentralized approach को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या दे रखा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज अप्रोच को डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो हम बहुत सी अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो, उसको क्रिएटिव मैनर में हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस पैराग्राफ वेयर उन्नी एंड मुन्नी बोथ आर लाइक कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. Look, Unni, I got the latest mobile phone. It is truly state of the art with Bluetooth games and all that. So this Munni is saying कि मेरे को एक नया फोन मिला है, इसमें like new features हैं, Bluetooth है, games हैं, बहुत सारी चीजें हैं. So this one's nice, but you had bought a new phone only a few months back. What happened to that one? अब वो बोल रहे हैं अच्छी